کس کا یہ نقش پا چمکتا ہے، کس کا یہ نقش پا کس کا یہ نقش پا چمکتا ہے، دور تک راستہ چمکتا ہے، کس کا یہ نقش پا چمکتا ہے، دور تک راستہ چمکتا ہے، تو ایک نگاہ ڈالی تھی آج تک آئینہ چمکتا ہے۔ اور جناب عبید اللہ کا حصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتوں کے اس حوالے سے تھوڑا لنک بن رہا ہے، ورنہ تو بالکل اچھا نہیں لگتا کہ شاعری میں بیچ میں نثر پیش کی جائے، تو شاعر نثر میں بھی ہاں تو یہ جو ستمبر، اکتوبر اور نومبر، ان 3 مہینوں کے دوران جو ہے میں سعودی عرب میں تھا، اور ویسے تو یہ میرا چوتھا، لیکن پہلے جتنے بھی سفر ہوئے تھے وہ صرف عمرہ اور مکہ مدینہ جدہ ان 3 شہروں کے حوالے سے تھے۔ لیکن یہ جو سفر تھا یہ خاص طور پہ اس لیے کیا گیا تھا کہ پورا سعودی عرب دیکھنا ہے، اور خصوصاً ان جگہوں کو دیکھنا ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے اور سابق انبیاء کے آثار کے حوالے سے جو علاقے وہ ہیں ان سے مناسبت ہے، نسبت ہے، ان کو دیکھنے کا وہ تھا۔ تو وہ یہ جو سارے یہ نجد اور حجاز، اصل میں سعودی عرب جو ہے وہ 2 خطوں کا مجموعہ ہے، اور ایک میدانی علاقے ہیں، وہ بھی ایک جو ہے وہ نجد کا علاقہ ہے جو صحرائی علاقہ ہے، اور حجاز جو ہے وہ سارا پہاڑیوں اور پہاڑوں پر مشتمل علاقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش چونکہ مکہ میں ہوئی تھی، اور مکہ بھی حجاز میں آ جاتا ہے، تو وہ اس حجاز کی وجہ سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب رسول حجازی بھی کرتے ہیں۔ ایک اور بھی لیکن اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہوتا ہے، سنا ہوگا لوگوں نے، رسول تہامی۔ تہامہ کیا ہے؟ وہ اس طریقے سے کہ جیسے اس کی ایک طرف تو بحیرہ عرب ہے، اس طرف خلیج فارس ہے، اور مغرب کی طرف جو ہے وہ خلیج احمر ہے، 3 سمندروں میں وہ گھرا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہے کہ جو یہ نجد زیادہ بڑا ایریا جو ہے نجد ہے، اس کے اندر صحرا ہیں سارے، وہ ہے۔ پھر ایک طرف جو بحیرہ احمر کے ساتھ علاقہ ہے وہ حجاز ہے، جہاں پہاڑ ہیں، لیکن وہ حجاز کے پہاڑ بھی بحیرہ احمر کے پاس نیچے اتر کے پھر میدان بن جاتے ہیں، یعنی ساحل کا تھوڑا سا پٹی ہے جو جس میں پہاڑ کم ہے۔ تو مکہ ایکچولی اس کے اندر آتا ہے، تہام، وہ علاقہ تہامہ کہلاتا ہے۔ تو جو کہ وہ تہامہ بھی وہ علاقہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور حجاز بھی وہ علاقہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو لہٰذا ان کو رسول حجازی بھی کہتے ہیں، رسول تہامی بھی کہتے ہیں۔ تو میرے دل میں یہی تھا کہ میں جاؤں اور یہ سارا حجاز اور نجد اور تہامہ اور جو بھی علاقے ہیں انبیاء سے، تو وہ دیکھنے کا ارادہ تھا۔ اچھا دل میں وہ بھی تھا خدشہ کہ پتہ نہیں یہ سب کچھ، بہت بڑا ملک ہے سعودی عرب جو ہے، پاکستان سے کئی گنا بڑا ملک ہے، اور 500-600 کلومیٹر فاصلہ تو ایسی جسے یہاں سے آپ بھارت کو جا رہے ہیں، مطلب اس طریقے سے لوگ جا رہے ہیں، اس کا ٹائم، لوگ وہاں پہ جن سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی مہمان نوازی کریں گے، یا آپ کو ان کا کیا رویہ ہے، ان کے پاس کتنا ٹائم ہے، یا اللہ کا نام لے کے بہرحال میں 15 ستمبر کو یہاں سے میں چلا گیا اور سعودی عرب پہنچا۔ جاتے ہی پہلے تو جدہ گیا، پھر اگلے دن مکہ جا کے عمرہ کیا، اور تیسرے دن جو ہے وہ میرے ایک دوست آ گئے اور ہم نکل گئے اس طرف مدائن صالح، جو حضرت کے صالح علیہ السلام کی بستی، اس طرف نکل گیا۔ وہ علاقہ جو ہے، پہلے ہم نکلے وہاں سے مکہ سے طائف، اور ایک علاقہ مہد الذہب، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی ایک سونے کی کان ہے، جس کی وجہ سے اس کو سونے کا گہوارہ یعنی مہد الذہب کہتے ہیں۔ اتفاق سے ہم وہاں رات ہو گئی، ہم وہاں رک گئے، یہ بالکل ایک وہ تھی جو ذہن میں نہیں تھا کہ یہ جگہ بھی دیکھیں گے۔ اگلے دن پھر ہم مدینہ گئے، مدینہ سے ہم گئے خیبر، مارکہ خیبر جس جگہ ہوا تھا، اور وہ سارا راستہ دیکھتے ہوئے گئے کہ جو اس جگہ پہ، اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں چل کر کیوں آئے۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ہسٹری تو ہم بہت زمانے سے پڑھ رہے ہیں، سیرت کی کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں، احادیث اور قرآن کی تفسیر میں بھی چیزیں آتی ہیں،
वो समझने का और वो इदराक का लिंक बनता ही नहीं जब तक आप उस जगह को जगह देख न लें। बेशक आप वहाँ से आधे घंटे में गुजर जाएं। मौलाना मौदूदी ने जो सफ़र अर्जुल कुरान किया था, तो अगर आप उस सफ़रनामा अर्जुल कुरान को मोहम्मद आसिम में पढ़े तो मौलाना ने बहुत टाइम नहीं लगाया था हर जगह, लेकिन वो हक़ुल यकीन ऐनुल यकीन जो वाली बात होती है ना कि वहाँ से आप गुजर गए, आपने अब आपको वही कुरान पढ़ने में, वही हदीस पढ़ने में, वो सीरत की किताब पढ़ने में इतना मज़ा आएगा कि पहले आपको मिला ही नहीं था। तो एक तो ये भी मकसद था कि आइंदा जब भी हम मुताला कुरान करें, तफसीर पढ़ें, तो हमें यूँ लगे कि हाँ ये तो हमारे मोहल्ले की बात है, ये तो हमारी देखी हुई बात है। पहले वो खैबर गए हम, खैबर में वो जगह देखी जहाँ पे ये खैबर का जो है फैसला हुआ था। उसके बाद हम पहुँच गए अल-उला। अल-उला तो अब उसका जदीद नाम है। वैसे जिस इलाके में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो बस्ती है उसको हम तो कहते हैं मदाइन सालेह, लेकिन जो अल-हिज्र सूरह अल-हिज्र है जिसकी तो वो उसको अरब कहते थे अल-हिज्रा। अच्छा, फिर जब मिस्री आए और सल्तनत उस्मानी आई तो वो जीम को गाफ करने वाला जो होता है ना सिलसिला, जमाल इस्लामिया को वो गमाल इस्लामिया कहते हैं, तो अल-हिज्रा को उन्होंने कहा अल-हैगरा। तो वो हैगरा नाम नक्शों में जहाँ जब भी आप देखेंगे तो मदाइन सालेह का नाम लिखा होगा हैगरा, वैसे वो मदाइन सालेह है। तो उस इलाके में जो अजीब व गरीब पहाड़ हैं, पहाड़ों को देख के यानी आप हैरान हो जाते हैं कि यार ये किस तरह के पहाड़ हैं, बिल्कुल ही अजीब व गरीब शेर उनका। यानी मैंने अपना सफ़रनामा जो मैं लिख रहा हूँ, मैं दायरा इल्म में शेयर भी करता हूँ, मैंने कहा कि लगता है कि लू के जो कैंडी बिस्किट होते हैं ना, कैंडी बाई लू, वो लगता है बहुत सारे कैंडी बाई लू लाके जो है वो एक सहरा में रख दिए गए हैं, बिल्कुल उसी शक्ल के हैं एकदम। तो उन पहाड़ों में ही वो उनकी बस्तियां हैं बनी हुई और बड़े बड़े मकबरे बने हुए हैं। उन्होंने पहाड़ों को तराश के उसके अंदर जो है बहुत बुलंद वाला दरवाज़ों के साथ अंदर, ज़्यादातर अब कहते हैं कि ये घर नहीं थे, ये मकबरे थे, कुछ कहते हैं कि घर थे। बल्कि सऊदी गवर्नमेंट अब जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ से गुजरे थे ग़ज़वत तबूक के लिए, तो उन्होंने सहाबा को यहाँ रुकने नहीं दिया, वो कहा था कि ये अज़ाब की जगह है और यहाँ से जो है जल्दी से गुजर जाएं। लेकिन अब क्या है कि चूँकि दुनिया में इतनी अट्रैक्शन है उस जगह की कि सऊदी गवर्नमेंट उसको सजा बना के टूरिस्ट एरिया उसको बना दिया है। अब वो उसको जस्टिफाई करने के लिए ये बात भी चल रही है कि ज़रूरी नहीं है कि यही आबादी का जिक्र हो कुरान में, यही ज़रूरी थोड़ी है कि ये आबादी हो। बस ये अब इसको कोई फैसले करें जो उलमा हैं कि बाकी, लेकिन बहरहाल वो वहाँ से जब भी गुजरे, हम गुजरे वहाँ से, खौफ होता है वहाँ पे, डर लगता है वहाँ से गुजरते हुए। यानी पहाड़ों को देख के हम इधर जाए मरगाला की तरफ इधर देखे तो खुशी होती है, बड़ा मज़ा आता है, जाता है इनको पड़ जा रहे हैं, उनको देख के ऐसा कुछ भी नहीं होता, उनको देख के खौफ होता है कि किस तरह। तो वहाँ वो आबादी देखी। उसके बाद फिर जब हम वहाँ से अल-उला से निकले तो अब हमें जाना था हातिम ताई का मकबरा देखने के लिए। हातिम ताई की कब्र, सही है ना, लात नहीं मारनी थी, खाली तो देखना था उसको। तो वो उसके लिए वो है एक शहर है हाइल, वो समझे कि इराक की सरहद के करीब है। तो उधर जो है वो हमें निकलना था। जब आप निकलते हैं अल-उला, तबूक और ये सारे मदीना, ये सारा इलाका तो हिजाज में है, लेकिन जब आप जाते हैं हाइल की तरफ तो आप हिजाज से निकल के नजद में दाखिल हो जाते हैं। तो वो वहाँ से फिर हम नजद में दाखिल हुए और जब हम पहुँचे हाइल, तकरीबन कोई 12-15 घंटे का सफ़र करके पूरी रात, तो पता चला जी वो हातिम ताई का मकबरा बंद है, वो उसको ये रिनोवेशन हो रही है, वो नहीं देख सके। उसके बाद हम निकले आगे। अगर एक और बहुत बड़े आसार हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, वो आगे एक शहर है वहाँ पे, हाइल और हफरल बातिन, ये दो शहर हैं जो इराक और कुवैत की सरहद के साथ हैं। उनके दरमियान में एक छोटा सा गांव है, हज़ारों साल पुराना गांव, लीना उसका नाम है। तो उसकी ख़ास बात यह है कि उस छोटे से गांव में, यानी इतना छोटा सा गांव है कि जो हमारा एक सेक्टर है ना, इससे भी छोटा ही होगा, उसके अंदर 300 कुएँ, और वो 300 कुएँ को हज़ारों साल पुराने हैं, जिनमें से कई मिट्टी में दब चुके हैं, रेत में, सहरा है सारा, सहरा नफूद उसके अंदर आता है ये, और कुछ 20-25 कुएँ ऐसे हैं जो अभी भी हैं और अभी भी उनके अंदर पानी निकलता है, और उसी पानी की वजह से वो आबाद हैं और उसी पानी की वजह से वो
इराक से हज काफिलों की एक पड़ाव भी वहाँ पे होता था। उन कुओं को जब हमने देखा तो वो हम आमतौर पे कुआं हमारे जहन में होता है कि गोल ज़मीन खुदी हुई है और उसके अंदर दीवार है ईंटों की, ऊपर चरखी लगी हुई है, वहाँ से हम पानी निकाल रहे हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उनको देख के लगता था कि जैसे किसी बहुत ही कोई पावरफुल चीज़ को ड्रिल मशीन या कोई घूसा यूँ करके ज़मीन में यूँ मारा और ज़मीन को फाड़ता हुआ वो नीचे गया और नीचे पानी निकल आया। ये इसका शेप है कुआं का। और इसके साथ जो रिवायत वाबस्ता है वो ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब वहाँ से यमन से वापस आ रहे थे या यमन जा रहे थे तो यहाँ पे सहरा में उन्होंने पड़ाव किया और खाना खाया लोगों ने, जो भी सब। तो फिर पानी की ज़रूरत महसूस हुई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा पानी कहाँ से आएगा यहाँ। तो एक जिन जो था उसने कहा, वो हंसने लगा। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्यों हंस रहे हो। तो उसने कहा कि आप पानी के ऊपर तो खड़े हैं। उसने कहा कि पानी कहाँ है। उन्होंने कहा आपके नीचे पानी है। उन्होंने कहा भाई निकालो। जिन्होंने आनन फानन यूँ नहीं किया, घूसे मारे या ज़मीन में या क्या किया, उन्होंने 300 कुएँ वहाँ से वो निकाल दिए। तो वो ये रिवायत वाबस्ता है हमसे, इससे इनकार भी किसी को नहीं है रिवायत को, इससे इसका इकरार भी नहीं करते लोग कि ऐसा है। लेकिन उस सहरा के बीच में एक गाँव के अंदर इतने सारे कुएँ मौजूद होना भी एक हैरत की बात है। पर वहाँ हमने देखे वो कुएँ, व्लॉग वगैरह किए, वहाँ पे तस्वीरें ली। उसके बाद फिर आगे चले गए हम और जुबैल जो बहरा अहमर, यानी हमने बहरा खलीज फ़ारिस, बहरा अहमर के पास से हमने सफ़र शुरू किया और खलीज फ़ारिस पे आए। यहाँ पे फिर मैंने कुछ दिन क़याम किया। अभी सफ़र तो बहुत लंबा है, आप टाइम देख लें अपना, शोरा का अगर है तो बस मैं यहाँ पे रोकता हूँ अपनी दास्तान। 25 मिनट हो गए, 5-25 5 5 मिनट और आप ले लें। जुबैल जो है वो जो नजद का ये वाला जो है इलाका जो खलीज फ़ारिस यानी ईरान के सामने है, ये इलाका पहले बिल्कुल गैर अहम होता था। यहाँ जहाँ नखलिस्तान है, में खजूर के दरख्त लोग रहते थे, बद्दुओं का इलाका था। लेकिन अब वो ना सिर्फ अरब ममालिक का, सऊदी अरब का, बल्कि पूरी दुनिया का अहम तरीन इलाका यूँ है कि दुनिया के सबसे बड़ा ज़ख़ीरा तेल का वो इस जगह पर है, नजद के सहरा के उस किनारे पे, जो किनारा खलीज फ़ारिस पर है। तो ये सारे शहर जो जुबैल और दमाम और अल-खुबर और जो कतीफ़ जितने भी है ना, ये सारे शहर तेल पैदा होने के बाद वजूद में आए हैं। तो सबसे पहला जो तेल का कुआं 1940-50 के दरमियान वो खुदा था, वो जिस जगह पे खुदा गया था, तो जब तेल निकला तो वो बड़ी खुशी का बायस हुआ अरबों के लिए, सऊदियों के लिए। तो वो खुशी को ज़हरान कहते हैं ना, तो खुशियाँ, ज़हरान का मतलब खुशियाँ, उस इलाके की जगह का नाम ही ज़हरान पड़ गया। ज़हरान जिसे कहते हैं, वो ज़हरान जिस जगह वो तेल का कुआं पहला था, उस जगह पे उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आराम को म्यूज़ियम बना दिया है, यानी वो एग्जैक्टली उसी जगह पर। तो ये जुबैल और कतीफ़ और दमाम और अल-खुबर, ये सारे इलाके, इसमें तकरीबन मैंने कोई 20 दिन में यहाँ रहा। लेकिन ये जो रिसर्च थी यहाँ पे वो जदीद सऊदी अरब की थी, इसका अंबिया और सहाबा की तारीख से कोई ख़ास इसका ताल्लुक़ नहीं। अब मैं ज़हमत कलाम दूंगा हसन इब्न साकी, गुल है अकीदत व हुजूर सरवर कौन। आपने बस 2 शहरों पे गुजारा किया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। एक ही बहर के अंदर, बहर जमील के अंदर 2 नातें पेश करने की सादत हासिल करूँगा। रसूल अकरम शफ़ी महशर सभी जहानों की हैं हकीकत। रसूल अकरम शफ़ी महशर सभी जहानों की हैं हकीकत। जो उनको अपने करीना समझे खुदा से कैसी है उसकी निस्बत। अजब समा था वो क्या घड़ी थी कि सुर्ख पोशाक में थे मलबूस। अजब समा था वो क्या घड़ी कि सुर्ख पोशाक में थे मलबूस। खुदा है शाहिद के चांद से बढ़ के खूबसूरत थी उनकी सूरत। यहाँ से पहले जहाँ पे थे हम, यहाँ के बाद अब जहाँ है जाना। यहाँ से पहले जहाँ पे थे हम, यहाँ के बाद अब जहाँ है जाना। हर एक जगह है उन्हीं का चर्चा, उन्हीं की शौकत, उनकी शोहरत।
सुभान अल्लाह। नजर झुकाए अदब से देखो सहाबा उनके खड़े हैं कैसे, नजर झुकाए अदब से देखो सहाबा उनके खड़े हैं कैसे, खुदा है कहता मैं उनसे राजी वो मुझसे राजी है ये हकीकत। वाह वाह वाह। अजल अबद की तमाम बातें बताओ किसने बताई तुमको, अजल अबद की तमाम बातें बताओ किसने बताई तुमको, ये चूं चरा का महल नहीं है वही है मालूल और इल्लत। है कितना खुशबख्त हूँ कितना खुशबख्त इब्न साकी कि पढ़ रहा हूँ मैं नात उनकी, हूँ कितना खुशबख्त इब्न साकी कि पढ़ रहा हूँ मैं नात उनकी, जो रोज़े महशर है सबके मलजा करेंगे मेरी भी वो शफा। और एक और नात के चंद अशार के, सलामती और सुकून मिलेगा करारे कल्बे हज़ी मिलेगा, सलामती और सुकून मिलेगा करारे कल्बे हज़ी मिलेगा, गमों के मारो मदीने जाओ कि तुमको सब कुछ वहीं मिलेगा, गमों के मारो मदीने जाओ कि तुमको सब कुछ वहीं मिलेगा। है मेरे आका करीम वाला रहीम वाला अजीम वाला, है मेरे आका करीम वाला रहीम वाला अजीम वाला, कि सारी अच्छाइयों का मरकज सिवाय उनके नहीं मिलेगा। खुदा ने उनसा हसीन कोई जहां में पैदा नहीं किया है, खुदा ने उनसा हसीन कोई जहां में पैदा नहीं किया है, मिलेंगे लाखों हसीन लेकिन न कोई उनसा हसी मिलेगा, मिलेंगे लाखों हसीन लेकिन न कोई उनसा हसी मिलेगा। कबूलियत की है ये निशानी जुबां पे उनकी है मदह खानी, कबूलियत की है ये निशानी ज़बां पे उनकी है मदह खानी। हसन बताओ कि ऐसा सदका जहां में तुमको कहीं मिलेगा, हसन बताओ कि ऐसा सदका जहां में तुमको कहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया जनाब सुल्तान जियार। बख्शिश की आस में है ये उम्मत हुजूर की, बख्शिश की आस में है ये उम्मत हुजूर की, और यहाँ पे वो मिसरा है, फैली है कायनात में रहमत हुजूर की। दोनों जहां में उसका मुकद्दर संवर गया, दोनों जहां में उसका मुकद्दर संवर गया, जिसको हुई नसीब शफात हुजूर की। ये इल्म बुर्दबारी ये उफ दर गुजर, ये इल्म बुर्दबारी ये उफ दर गुजर, करते थे माफ थी ये तबीयत हुजूर की। मक्का से 3 मील पे गारे हिरा जो है, मक्का से 3 मील पे गारे हिरा जो है, मशहूर थी वहाँ पे इबादत हुजूर की। इकरा के इनकलाब से पहले भी 400, इकरा के इनकलाब से पहले भी 400, सादक अमी की सी थी शोहरत हुजूर की, अमीन की सी थी शोहरत हुजूर की। इकरा के इनकलाब से पहले भी 400, इकरा के इनकलाब से पहले भी 400, सादक अमी की थी सादक अमी की सी थी शोहरत हुजूर की। उनके क़याम लैल पे आती थी ये सदा, आती थी ये निदा, उनके क़याम लैल पे आती थी ये निदा, मतलूब है खुदा की राहत हुजूर, मतलूब है खुदा को भी राहत हुजूर की। रोते थे गिड़गिड़ाते थे वो रब के सामने, रोते थे गिड़गिड़ाते थे वो रब के सामने, उम्मत को बख्शवाने की थी चाहत हुजूर की। रोका था जिससे काम वो करते हैं शौक से, सवालिया है, रोका था जिससे काम वो करते हैं शौक से, किस राह पे चल पड़ी है उम्मत हुजूर की।
अल्लाह ने उनके फेल को सुन्नत बना दिया। वाह क्या बात। अल्लाह ने उनके फेल को सुन्नत बना दिया। असहाब को नमूना थी सीरत हुजूर की। उनका हर एक कौल हदीसों में ढल गया। उनका हर एक कौल हदीसों में ढल गया। ता अब रहेगी रसालत हुजूर की। जन्नत तो खुद ही उनकी, जन्नत तो खुद ही उसकी मुश्ताक है ज़िया। जन्नत तो खुद ही उसकी मुश्ताक है ज़िया। जिस दिल में बस गई हो मोहब्बत हुजूर की। एक है टाइम जी टाइम बहुत है। आज शुअरा के पास बहुत टाइम है। पहले पढ़ चुका हूं। अल्लाह की रहमतों का खजीना मिला। अल्लाह की रहमतों का खजीना हमें मिला। गर्दाब में घिरे थे सफीना हमें मिला। सीरत मिली जो उनकी तो ये दुनिया बदल गई। सीरत मिली जो उनकी तो ये दुनिया बदल गई। जीवन गुजारने का करीना हमें मिला। इस उम्मते रसूल मुअज्जम पे ये करम, इस उम्मते रसूल मुअज्जम पे ये करम, खुद को संवारने का महीना हमें मिला। इस उम्मते रसूल मुअज्जम पे ये करम, खुद को संवारने का महीना हमें मिला। एक रात जो 1000 महीनों से बालातर, एक रात जो 1000 महीनों से बालातर, और उसमें बख्शिशों का ये जीना हमें मिला। हर सू है आशिकान की महफिल सजी हुई। हर सू है आशिकान की महफिल सजी हुई। ये शर्फ है जो सीना बसीना हमें मिला। जश्ते नहीं है आंख में लालो जवाहरात, जचते नहीं है आंख में लालो जवाहरात। जब से है आमना का नगीना हमें मिला। जब से है आमना का नगीना हमें मिला। दुनिया जहाँ की दौलतो सरवत को क्या करे। दुनिया जहाँ की दौलतो सरवत को क्या करे। इश्क़े रसूल का है दफीना हमें मिला। दुनिया का कोई शहर समाया ना आँख में। दुनिया का कोई शहर समाया ना आँख में। मक्का के बाद जब से मदीना हमें मिला। दुनिया का कोई शहर समाया ना आँख में। मक्का के बाद जब से मदीना हमें मिला। आले नबी से प्यार हो और उनके अदू से भी। आले नबी से प्यार हो और उनके अदू से भी। सद शुक्र के नहीं है यकीना हमें मिला। जिसमें बसी हुई है मोहब्बत रसूल की। जिसमें बसी हुई है मोहब्बत रसूल की। है फख्र ये ज़िया को वो सीना हमें मिला। जनाब सित्तैन ज़िया रिज़वी अपना कलाम अता फरमा रहे थे और अब मैं डॉक्टर मज़हर दानिश से मुल्तमिस हूँ कि वो अपने अशार नक़ल अशार को हुज़ूर पेश फरमाएँ। जनाब डॉक्टर मज़हर दानिश। 2 शेर नात के अपना रो। दुआ लिखे अता लिखे दुआ लिखे अता के रहमत की घटा लिखे। दुआ लिखे दुआ लिखे अता लिखे के रहमत की घटा लिखे। मुझैसा नातवा शायर भी नाते मुस्तफ़ा लिखे। दुआ लिखे अता लिखे के रहमत की घटा लिखे। मुझैसा नात शायर भी नाते मुस्तफ़ा लिखे। जहाँ में 400 दानिश शबे तारीख छाई है। जहाँ में 400 दानिश शबे तारीख छाई है। जरूरी है कलम मेरा मोहम्मद का दिया लिखे। जहाँ में 400 दानिश शबे तारीख छाई है। जरूरी है कलम मेरा मोहम्मद का दिया लिखे। और एक नात के चंद शार। महफिले गुल में है गुफ्तगू आपकी,
محفل گل میں گفتگو آپ کی، شوق بلبل کو بھی آرزو آپ کی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، چاند تارے تبھی تو ہے محو سفر، چاند تارے تبھی تو ہے محو سفر، کھینچتی ہے انہیں جستجو آپ کی۔ کیا بات ہے، اور تشنا کیسے رہے گا وہ روز جزا، تشنا کیسے رہے گا وہ روز جزا، جام جس کا بھرے آپ جو کیا بات ہے، کیا بات ہے، تشنا کیسے رہے گا وہ روز جزا، جام جس کا بھرے آپ جو۔ اور شعر دیکھیے گا کہ آپ نے جو کہا گویا رب نے کہا، کیا بات ہے، آپ نے جو کہا گویا رب نے کہا، بات ایک بھی نہیں فالتو آپ کی، آپ نے جو کہا گویا رب نے کہا، سبحان اللہ، بات ایک بھی نہیں فالتو آپ کی۔ اور اے خدا ہو عطا دانش ناتواں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اے خدا ہو عطا دانش ناتواں، نعت پڑھتا پھرے خوب کیا خوب، بات ہے، کیا بات ہے، اے خدا کیا بات ہے، ہو عطا دانش ناتواں، نعت پڑھتا پھرے خوب خوب۔ بھائی وہ فالتو والا کیا قافیہ نبھایا ہے، جس کی کوئی یہ اس کا یہ چونکہ یہ کتنی خوبصورتی زمانہ طالب علمی کا شعر ہے، اور حفیظ طالب صاحب صدارت فرما رہے تھے جب میں اورینٹل کالج میں تھا۔ خورشید رضوی صاحب جو ہے وہ صدارت وہ تھے مہمان خصوصی، اور صدارت فرما رہے تھے حفیظ طالب صاحب۔ کہنے لگے رضوی صاحب کہ فالتو کبھی بھی نعت کا لفظ نہیں رہا، لیکن اس بچے نے جہاں پہ نکال لگا دیا نا، اب نکال کو نہیں سکتا۔ یہ ان کے الفاظ دو تین بار سنا انہوں نے، شعر سنائیں نا وہی یہی والا جو ہاں، آپ نے جو کہا گویا رب نے کہا، بات ایک بھی نہیں فالتو آپ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا زبردست ہے۔ آپ نے جو کہا گویا اے خدا بنتا بڑا ہو عطا دانش ناتواں، نعت پڑھتا پھرے خوب خوب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مظہر دانش اپنا کلام عطا فرما رہے تھے، اور اب میں درخواست گزار ہوں ڈاکٹر افتخار برنی صاحب سے کہ وہ اپنے گلہائے عقیدت بحضور سرور عطا فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر افتخار برنی، صاحب صدر کی اجازت سے، بسم اللہ۔ میرے نبی میں تیری عظمتوں کی بات کروں، میرے نبی میں تیری عظمتوں کی بات کروں، زماں مکاں سے سوا رفتوں کی بات کروں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے خیال کی حد سے پرے ہے تیرا سفر، میرے خیال کی حد سے پرے ہے تیرا سفر، میں اس زماں سے الگ ساعتوں کی بات کروں، میرے خیال کی حد سے پرے ہے تیرا سفر، میں اس زماں سے الگ ساعتوں کی بات کروں، بس ایک حرف دعا دشمنوں کی خاطر بھی، سبحان اللہ۔ بس ایک حرف دعا دشمنوں کی خاطر بھی، جواب سب و شتم چاہتوں کی بات کروں، بس ایک حرف دعا دشمنوں کی خاطر بھی، جواب سب و شتم چاہتوں کی بات کروں، میں اپنی ذات میں سمٹا ہوا ہوں ذرہ مگر، میں اپنی ذات میں سمٹا ہوا ہوں ذرہ مگر، میں کائنات کی سب وسعتوں کی بات کروں، میں اپنی ذات میں سمٹا ہوا ہوں ذرہ مگر، میں کائنات کی سب وسعتوں کی بات کروں، میرا وجود پگھلنے لگا زمستہ میں، میرا وجود پگھلنے لگا زمستہ میں، تیرے کرم کی جو میں حدتوں کی بات کروں، میرا وجود پگھلنے لگا زمستہ میں، تیرے کرم کی جو میں حدتوں کی بات کروں، ہزار اہل حشم بوریا نشیں پہ فدا، ہزار اہل حشم بوریا نشیں پہ فدا،
میں تیری سب سے جدا ثروتوں کی بات کروں. ہزار اہل حشم بوریا نشیب پہ فدا، میں تیری سب سے جدا ثروتوں کی بات کروں. یہاں پہ صرف محبت کے استعارے ہیں، یہاں پہ صرف محبت کے استعارے ہیں. گلوں کی رنگوں کی اور نکھتوں کی بات کروں. یہاں پہ صرف محبت کے استعارے ہیں، گلوں کی رنگوں کی اور نکھتوں کی بات کروں. میرے شعور میں جھل مل چراغ جلنے لگے، میرے شعور میں جھل مل چراغ جلنے لگے. ہیرا میں گزری ہوئی ساعتوں کی بات کروں. اور آخری شعر ہے، سمندروں سے بھی گہری محبتیں ہیں تیری، سمندروں سے بھی گہری محبتیں ہیں تیری. محیط کون و مکان رحمتوں کی بات کروں. میں تیری عظمتوں کی بات کروں. زمان مکان سے سوا رفتوں کی بات کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب ڈاکٹر افتخار برنی خوبصورت کلام عطا فرما رہے تھے، اور آخر میں آج کی اس بزم کے صاحب صدارت جناب احمد حاتب صدیقی، میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنے نعت کے اشعار جو ہے وہ عطا فرمائیں. جناب احمد حاتب صدیقی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بعد مدح خدا، بعد حمد خدا و مدح رسول، بعد حمد خدا و مدح رسول. اہل محفل کریں سلام قبول، اور محفل نعت میں ہوا حاضر مجھ سا شاعر کہ ہے ظلم و جہول. چار مصرے پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. ہے زمین اس کی جدا اور آسماں سب سے الگ. ہے زمین اس کی جدا اور آسماں سب سے الگ. اہل فن ہے نعت گوئی کا جہاں سب سے الگ. ہے زمین اس کی جدا اور آسماں سب سے الگ. اہل فن ہے نعت گوئی کا جہاں سب سے الگ. برگزیدہ ہستیوں کی منقبت اپنی جگہ، برگزیدہ ہستیوں کی منقبت اپنی جگہ. پر ہے طرز مدح شاہ دو جہاں سب سے الگ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعت کے چند اشعار ہیں. جی بسم اللہ. کہ آپ آئے تو تکمیل دین ہو گئی. آپ آئے تو تکمیل دین ہو گئی، اور نامکمل عمارت حسین ہو گئی. بہت خوب سلامت رہیے جناب. آپ آئے تو تکمیل دین ہو گئی، نامکمل عمارت حسین ہو گئی. اور سارے اوہام پا در ہوا ہو گئے. سارے اوہام پا در ہوا ہو گئے، اور دل کی بستی بھی شہر سارے اوہام پا در ہوا ہو گئے، اور دل کی بستی بھی شہر یقین ہو گئی. اور جہل کے دشت میں سرگراں زندگی، جہل کے دشت میں سرگراں زندگی، معرفت کے ہرا میں مکین ہو گئی. جہل کے دشت میں سرگراں زندگی، معرفت کے ہرا میں مکین ہو گئی. عقل انسان کے پابند احساس تھی، عقل انسان کے پابند احساس تھی. عالم راز کی سیر بھی ہو گئی. عقل انسان کے پابند احساس تھی، عالم راز کی سیر بھی ہو گئی. اور اس زمین جو چومے قدم آپ کے.
वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, इस माशाल्लाह। ज़मीने जो चूमे कदम आपके, मेरी मस्जिद ये सारी ज़मीन ज़मीन हो गई, वाह जी वाह, भाई क्या मेरी मस्जिद क्या ये सारी नुक्ता ज़मीन है, है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा एक तो अभी गुंजाइश तो है। वो जी, आधा जी, घंटा जी, पड़ा है जी आप मैं दीवान नहीं लाया। आज आपको एहसास हुआ कि दीवान बस सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कबूल इस्लाम का वाक़या याद होगा आपको, तो उसी से नात का आगाज़ कर रहा हूँ जी बिस्मिल्लाह। कि दस्ते अक़दस से बैअत को जब मस हुआ, वाह, दस्ते अक़दस से बैत को जब मस हुआ, दस्ते अक़दस से बैअत को जब मस हुआ, वो जो पत्थर था पल भर में पारस हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, पल भर में पारस। दस्ते अक़दस से बैअत को जब मस हुआ, वो जो पत्थर था पल भर में पारस हुआ, और दम बखुद थे अरब, दम बखुद थे अरब आपकी गुफ्तगू, वाह, दम बखुद थे अरब आपकी गुफ्तगू, जिसने दिल से सुनी दिल से बेबस हुआ। दम बखुद थे अरब आपकी गुफ्तगू, जिसने दिल से सुनी दिल से बेबस ये बस हुआ, और जिसने देखा उन्हें चश्मे ईमान से, वाह, जिसने देखा उन्हें चश्मे ईमान से, बाद अज़ अंबिया जग में अक़दस हुआ। जिसने देखा उन्हें चश्मे ईमान से, बाद अज़ अंबिया जग में अक़दस हुआ, और जिसको सोहबत मिली वो सितारा बना। जिसको सोहबत मिली वो सितारा बना, जिसको सोहबत मिली वो सितारा बना, इक़्तिदा के लिए बस वही बस हुआ। वाह 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 वाह, बहुत वाह अच्छे, वाह वाह वाह, कैसी है कैसी, वाह वाह वाह, जिसको सोहबत मिली वो सितारा बना, इक़्तिदा के लिए बस वही बस हुआ, और जिसने चाहा उन्हें उसको चाहा गया। वाह वाह वाह, कमाल है, जिसने चाहा उन्हें उसको चाहा गया। इब्ने हबशा के फर्जंद फारस, जिसने चाहा उसको चाहा गया। इब्ने हबशा के फर्जंद फारस हुआ, वाह वाह वाह, चंद बरसों में मक्का पे हक छा गया। वाह, चंद बरसों में मक्का पे हक छा गया, और बातिल का जो खार था खस हुआ। नुत्क़े हातिब को कैसे ये कसबल मिला, नुत्क़े हातिब को कैसे ये कसबल मिला, मदखाने रिसालत ये बेकस हुआ। वाह वाह।